So, good morning, students. Today we will discuss about the energy flow in ecosystem and the models of energy flow. So, इसके अलावा हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड. सो आपका इकोसिस्टम का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा. इससे पहले आई हैव पुट अ वीडियो ऑन types of ecosystems and various types like desert ecosystem, aquatic and forest ecosystems के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया है. So now in this lecture we will discuss about the energy flow in ecosystems and energy flow model. So we know that the energy is required for the maintenance, growth, repair, movement, locomotion and reproduction. So in these all activities there is a involvement of energy. We need energy for to perform these all activity. So we see on the earth the ultimate source of energy is sun. So the solar energy it's come from the sun and captured by the producer, that is the green plants, and then it will transfer to the consumer. So this is a very simple flow of energy, how it's comes to the earth and then used by the producer and then transferred to the consumer. So we know that a very reasonable proportion of energy is lost out of these living system, but ultimately it is used or converted into the different form. So the whole process is called the flow of energy in a ecosystem. So इसके बारे में हमें जानने से पहले we have to know about that the solar budget कि कितना एनर्जी आता है और कितना एक्चुअल हम यूज़ कर पाते हैं. So we know that without autotrophs there would be no energy available to all organisms that lack the capacity of fixing the light energy. We know autotrophs are the photoautotrophs, green plants. They are the major interlink, we can say that, to provide a sun energy and capturing the sun energy and transferred it into the different type of species. So without autotrophs we cannot predict that the life of other organisms, because they have a capacity, only they are used to fix that light energy. So this it is the amount of energy that is received and transferred from organism to organism is an ecosystem that modulate the ecosystem structure. So those only that amount जो कि फोटोऑटोट्रॉप्स के द्वारा लिया जाता है, that will determine the structure of ecosystem, or we can say that will modulate or regulate the balance of ecosystem. केवल उतना ही फ्रैक्शन पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए कैपेबल है जितना हमारे फोटोऑटोट्रॉप्स सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं. केवल उसी एनर्जी से ही हमारा पूरा इकोसिस्टम रन करता है. सो दैट पार्ट दैट इज फोटोऑटोट्रॉप्स, और वो एक जो बैकबोन है बहुत ही ज़रूरी है. अगर हम देखें कि एक सोलर बजट को, एनर्जी बजट को देखें अर्थ के, तो सन वी नो इट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है. तो अगर इसका 100% हम देखें सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी इमिट हो रही है, तो उसमें मेजर पार्ट जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द फ्रॉम द अर्थ सरफेस और बाय द क्लाउड, है ना. कुछ ही पार्ट जो एब्जॉर्ब होता है वो आइदर क्लाउड में होगा और एटमॉस्फेयर में हो जाएगा. उसमें से भी अगर हम देखें कि जो इकोसिस्टम को रन करने के लिए है दैट इज ओनली 0.02% एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, एंड देन वो पूरा प्रोसेस फॉलो करता है कि कैसे कैसे वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा और कैसे हमारा इकोसिस्टम वर्क करेगा. बट जो मेजॉरिटी ऑफ सनलाइट दैट इज कमिंग अप टू द अर्थ सरफेस इज एब्जॉर्ब बाय लैंड और ओशियन,
and either it had absorbed by the atmosphere, different layer of atmosphere, especially ozone and other greenhouse gases, and some is reflected back by the clouds or earth surface into the atmosphere. So हम ये कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी आ रही है उसका बहुत ही कम पार्ट, दैट इज 0.2%, 0.02% ही हमारे फोटो सिस्टम में आ पाता है, देन वो आके इकोसिस्टम में वर्कआउट करेगा। यही बात स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस करी है कि ओनली 0.02% ऑफ द सनलाइट रीचिंग टू द एटमॉस्फेयर that is used in a photosynthesis. Remaining 51 reaches the earth surface and absorbed by the ocean and earth surface. Some of the part is captured in the ozone layer, and some is reflected back to the atmosphere. So very that is 1.15th of million of total solar radiation that is ultimately reached in the earth atmosphere. तो अब उस सोलर रेडिएशन जो बहुत ही कम आया है उससे भी हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितना एनर्जी का यूज हम प्रोडक्शन में कर पा रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्टिविटी. सो व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड by the green plant, some of it oxidize or burn inside their body or converted into the carbon dioxide, which is released during the respiration and is accomplished by the loss of energy. Now the producers are left with a little less organic matter that is actually produced by them. सो यहाँ पे जो एनर्जी कैप्चर हुई सबसे पहले ग्रीन प्लांट के द्वारा, उसके बाद उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक मैटर बनाया अपने अंदर बॉडी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा. सो जो पूरी प्रोसेस हुई उसमें से बहुत सारी अमाउंट है वो रिलीज हो जाती है ड्यूरिंग देयर रेस्पायरेशन एंड देयर ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड उसमें से जो एक्चुअल पार्ट है, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ग्लूकोज और जो भी कार्बन मॉलिक्यूल हैं जो अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट इन पे, जो इनके प्रीडेटर हैं, जो भी हर्बीवोर्स हैं, उनको, उसी को हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं. दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय देम, दैट इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट प्रीडेटर लाइक हर्बीवोरस, है ना, जो उन पे फीड करने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनको अवेलेबल रहेगा. दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. अब इसमें हम अगर रेस्पिरेटरी लॉस को जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. मीन्स एनर्जी तो उसने कंज्यूम करी थी, उससे ऑर्गेनिक मैटर भी बनाया, बट उसमें से कुछ लॉस कर गया अपने जो भी एक्टिविटी है डे बाई डे की उसको करने में, तो उसको भी हम जोड़ेंगे तो दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज GPP माइनस R. इसमें से हम रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर देंगे, और ग्रॉस की बात करेंगे तो हम नेट में जो है रेस्पिरेशन लॉस को ऐड कर देंगे. सो ये जो दो फॉर्मूले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये दोनों ही NPP और GPP का आपको याद रखना है. नेट प्रोडक्टिविटी को यू कैन ऑल्सो ऐसे लर्न कर सकते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट को हम करते हैं कि आपने माल खरीदा, उसको बेचा, उसमें से हमने जो ट्रांसपोर्टेशन और मेंटेनेंस पे खर्च किया था उसको हमने माइनस कर दिया, तो जो नेट प्रॉफिट आपको होता है दैट इज सिमिलर लाइक द नेट प्रोडक्टिविटी. सिमिलरली ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, जो टोटल हमें गेन हुआ उसमें हमने अपना जो भी खर्चा था उसको जोड़ लिया, तो टोटल हमारे पास जो मनी आई उसको हम ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बोलेंगे. इट इज सिमिलर टू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी. देन अब हम एसिमिलेशन की बात करें, हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. सपोज कोई प्लांट है, उसको एक रैबिट है और पॉपुलेशन ऑफ रैबिट, द इंजेस्ट प्लांट मटेरियल, उन्होंने प्लांट मटेरियल को खा लिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेक्शन, है ना. जब
कोई भी अवेलेबल मटेरियल है जो प्रोड्यूस हुआ है उसको कोई सेकेंडरी लेवल का ऑर्गेनिज्म उसको एसिमुलेट कर रहा खा रहा है, तो दैट प्रोसेस नोन एज इंजेक्शन. And a part of this plant material is processed and then used to make a new cell or tissue in the body of the rabbit, and this part is called assimilation. मीन्स जब उसने कोई फूड प्रोडक्ट खाया और उसके अंदर बॉडी में उस फूड प्रोडक्ट का यूज हुआ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ न्यू सेल्स इनसाइड द बॉडी, तो दैट इज एसिमुलेटेड इन दैट पर्टिकुलर बॉडी. उसके अंदर वो जाके यूज हुआ, वो लगा, तो उसको हम बोलेंगे एसिमुलेशन. ठीक है. एंड कुछ ऐसा पार्ट है जो एसिमुलेट नहीं हो पाया. फॉर एग्जाम्पल सम पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम्स और रूट एग्जिस्ट फ्रॉम द रेबिट बॉडी. कुछ पार्ट है वो रेबिट की बॉडी ने एसिमुलेट नहीं किया, उसको एज सच निकाल दिया. दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. सो वी कैन से दैट कि जो एसिमुलेशन हुआ, जो बॉडी में लगा, दैट इज जितना उसने इंजेक्ट किया था, जितना उसने खाया था, जितना उसका बाहर बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, सो दैट इज माइनस फ्रॉम द इंजेक्शन. तो उसको हम बोलेंगे एसिमुलेशन. एसिमुलेशन जितना बॉडी में उसने गेन किया है, दैट इज एसिमुलेशन. सो इसी के बेसिस पे देयर इज ए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. उसकी डेफिनेशन आती है कि सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या है. सो रैबिट यूज अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द एसिमुलेटेड एनर्जी इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सच एज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, टेम्परेचर, प्रोटीन सिंथेसिस. इन सब एक्टिविटी में जो उसने खाया है ना, जो एनर्जी ली है, एसिमुलेटेड की है, जो पार्ट से जो एनर्जी ली है, उसको इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लगा देगा. अब जो सब वो इतनी चीज़ से लगेगा तो उससे कुछ एनर्जी, रेस्ट ऑफ एनर्जी गोज इनटू द मेकिंग ऑफ बॉडी मास, बायोमास ऑफ द रैबिट बाय ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब कुछ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लग गया, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करने में, प्रोटीन सिंथेसिस में. अब जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा उससे उसकी बॉडी मास बनेगी, वो ग्रो करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा. सो इन दैट फूड चेन द रैबिट इज कंज्यूम्ड बाय ए फॉक्स. तो जो उसको एनर्जी मिलेगी फॉक्स को, दैट इज जो रैबिट को खाने से जो उसको एनर्जी मिलेगी, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी प्रोडक्शन. और वो कब मिलेगी? उसके जो बायोमास जो अवेलेबल है उसके थ्रू उसको मिलेगी. सो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्शन. जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है रैबिट, दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड दैट इज present to the next predator, that is available to the next predator, that is the fox. So we can say that the next net production efficiency या next secondary production efficiency, उसको हम बोलेंगे the efficiency with which an organisms convert assimilated energy into the primary or secondary production is called net production efficiency. इतनी इफिशियंसी किसी ऑर्गेनिजम्स की जिससे वो एसिमुलेटेड एनर्जी को प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर पाए, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलेंगे. एंड दिस इफिशियंसी इज इक्वल टू द प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द एसिमुलेशन फॉर द एनिमल. ठीक है. और एनपीपी डिवाइडेड बाय द जीपीपी. इसको हम प्लांट के केस में बोलेंगे और एनिमल के केस में बोलेंगे एसिमुलेशन. टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है, लास्ट में बायोमास का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको जितना एसिमुलेटेड किया था उससे हम डिवाइड कर देंगे. सो प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एसिमुलेशन इन केस ऑफ एनिमल, और प्लांट में एनपीपी अपॉन जीपीपी, दैट इज द नेट प्रोडक्शन इफिशियंसी. इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इनटू हम 100 कर देंगे. सो दीज आर द सेकेंडरी प्रोडक्शन, एसिमुलेशन, प्रोडक्टिविटी. ये सब इससे जुड़े हुए जो हैं एनर्जी से जुड़े हुए कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं. अब इकोसिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करता है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारे इकोसिस्टम में भी आपको देखने को मिलेंगे. सो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड बाय द ग्रीन प्लांट इनटू chemical energy. It is confirming the first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics क्या बोलता है? As the energy flow through the food chain, there occur a dissipation of energy at every tropic level,
and the loss of energy takes place through the respiration, loss of energy in a locomotion, running and hunting and other activity. So at every level there is a 90% loss of energy, and energy transferred from one tropic level to another is only 10%. सो यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी तरह लॉस हो रही है, बट वो लॉस भी क्या हो रही है, इन डिफरेंट फॉर्म में लॉस हो रही है, आइदर हीटिंग में, आइदर रनिंग एक्टिविटी में, आइदर रिस्पायरेशन में. तो वो हम क्रिएट नहीं हो रही है, कन्वर्ट हो रही है ओनली. वी आर नॉट क्रिएट और वी डोंट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, वी आर क्रिएट कन्वर्टिंग इट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जो एनर्जी है उसको नाइदर क्रिएटेड और नाइदर डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी जो एनर्जी लॉस है वो 90% हो रहा है, बट वो डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू रिलीज हो रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हंटिंग, टेम्परेचर, इसमें वो एनर्जी निकल रही है. और कुछ एनर्जी एसिमुलेट हो रही है जो कि दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाएगी, दैट इज ओनली 10%. सो एनर्जी यहाँ पर टोटल जितनी है उतना ही आपके पास कन्वर्ट हो रही है इन दूसरे फॉर्म में, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है. नाउ द सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ एंट्रोपी. वो ये बोलता है कि एनर्जी डिसिपिएट्स एज इट इज यूज्ड और इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम ए मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म टू डिस्पर्स फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी है जो 10% है, वो जब दूसरे फॉर्म में जाएगी तो वो कहीं ना कहीं फर्दर यूज होगी. सो इट इज यूज और इट इज कन्वर्टेड टू मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म टू द डिसिपिएटेड फॉर्म. जो जिस फॉर्म से वो आई है उससे ज़्यादा और वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज हो जाएगी, और जो एंट्रोपी है वो एनवायरनमेंट की बढ़ा देगी. सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो यहाँ पे भी एनर्जी का ऐसा ही हो रहा है, जब वो दूसरे टॉपिक लेवल में जा रही है तो उसका यूज और इफिशिएंटली होके बायोमास बन रहा है और वो फर्दर एनवायरनमेंट में दूसरे फॉर्म में जा रही है. सो एट एनी चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर implies as an irreversible loss of useful energy in form of heat which increase the entropy or disorder of universe. वही है, जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है और वो इरिवर्सिबल है. एक बार वो चेंज हो जाए तो उसका रिवर्सिबल हम फिर से उसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. सपोज वो अगर हीट में चेंज हो रही तो हीट से वो क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ा रहा है. यूनिवर्स का जो है वो है डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज कर रहा है, ऑर्डरनेस को, रेंडमनेस बढ़ा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, बट वो कन्वर्ट फिर से रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं जा रहा है. सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो ये दोनों लॉ हमें इकोसिस्टम में भी देखने को मिल जाएंगे. सो अब एनर्जी फ्लो के मॉडल अगर हम देखें तो कई तरीके के मॉडल हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं. सो फर्स्ट जो मॉडल है दैट इज सिंगल चेन एनर्जी मॉडल. ठीक है, इसमें बोलते हैं कि एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक. जो फर्स्ट सिंगल चैनल है वो बोल रहा है unidirectional and non-cyclic. At each tropic level there is a progressive decrease in energy as heat in the metabolic reaction, and also some of energy is utilized at each tropic level. So यहाँ पे जो हमने बात करी कि सोलर रेडिएशन से ऑटोट्रॉफ्स ने एनर्जी ली, अब ऑटोट्रॉफ्स से कुछ एनर्जी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रिलीज कर रहे हैं एज ए हीट एंड अदर थिंग्स, और कुछ को कंजर्व कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास. एंड देन फिर वो जो प्रोडक्शन में जा रहा है उसमें कुछ एनर्जी जो हर्बीवोरस हैं वो अपने बायोमास को प्रोड्यूस करने में यूज़ कर रहे हैं, कुछ उसकी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, और कुछ रिस्पायरेशन के थ्रू वो लॉस कर रहे हैं, और कुछ उनका पार्ट डिकम्पोज हो रहा है. देन इससे वो एनर्जी डिकम्पोजर में भी जा रही है. इसके बाद जो उनका बायोमास अवेलेबल है वो कार्निवोरस उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें से भी वो कुछ एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रिस्पायरेशन में जा रही है, कुछ वो डिकम्पोज हो रहा है तब रह रही है. तो जो एनर्जी का फ्लो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, नॉन साइक्लिक. ठीक है, बट जो एनर्जी है आइदर वो बायोमास में कन्वर्ट हो रही है और आइदर वो रिस्पायरेशन और अनयूज फॉर्म में
कन्वर्ट होके निकल जा रही है, उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसको फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, एक डबल चैनल कॉलम बनाया, डबल चैनल मॉडल बनाया, जिसको वाई शेप मॉडल भी बोलते हैं एनर्जी फ्लो का। सो इसमें जो साइमल्टेनियसली इट इज वर्किंग ऑन अ ग्रेजिंग एज वेल एज डिटीरियस फूड चेन। अब फूड चेन आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसमें दो टाइप की आती है, ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक डिटीरियस फूड चेन होती है, जो कि डिकम्पोजर से जुड़ी हुई है। ग्रेजिंग फूड चेन्स हमारे जो है कंज्यूमर हर्बीवोरस उनसे जुड़ी हुई होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, और डिटीरियस फूड चेन है दैट इज स्टार्ट विद द डिकम्पोजर। सो इसमें जो दोनों वाई शेप हैं, दोनों आर्म है वाई के, इस तरीके से शेप बनेगा, एक प्रोड्यूसर से बता रहा है, एक डिकम्पोजर्स और डिट्रीब्यूटर्स फूड चेन्स बता रहा है। सो इन नेचर बोथ ग्रेजिंग एंड डिट्रीब्यूटर्स फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड इन अ सेम इकोसिस्टम। एक ही इकोसिस्टम में दोनों आपको साथ में चलती हुई दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, द डेड बॉडीज ऑफ स्मॉल एनिमल्स दैट वेयर वंस ए पार्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन बिकम incorporated in the detritus food chains as do the faces of grazing food animals। सो वो फीकस हैं, ठीक है, और वो उनका जो डेड बॉडीज है वो सब एक बार डिटेरियस फूड चेन्स का पार्ट बन जाएंगे, जो पहले कभी ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट थे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है ये जो मॉडल है दैट इज डबल चैनल मॉडल। इसमें वाई शेप है दैट इज हर्बीवोरस को एक दिखा रहा है, एक डिट्रियस कंज्यूमर्स को दिखा रहा है, और इस तरीके से ये आपस में इंटरकनेक्टेड दोनों फूड चेन है। तो इसको ऑडम ने 1983 में ये लाया गया था। अब इसके अलावा ईपी ओडम ने उसको और भी मॉडिफाई किया, इसके बाद एक और बनाया दैट इज यूनिवर्सल मॉडल ऑफ इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो। सो ये सिमिलर वाई चेन वाई जैसा है, बट इसमें देयर आर 3 आर्म, वन इज फॉर एक्सक्रीशन, one is for assimilation and another for respiration, and that part, assimilated part, is also sometimes is again going back and it excreted from the system। so इस तरीके से ये यूनिवर्सल फ्लो चलता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर में चलेगा, कंज्यूमर में पड़ेगा, देन सिमिलर इट विल गोज टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्सरी कंज्यूमर। सो इसमें 3 आर्म्स हैं, and one arm is for the excretion, one form the assimilation and production and growth, and second one is respiration loss। so ultimately जो biomass है that will show the जो accumulated energy उसको, assimilated energy उसको, and the loss is depicted by the excretion and the respiration। so the model can be applied to any living component, whether it is a plant, animal, microbes, individual population और ट्रॉपिक लेवल। सो इसीलिए इसको बोला गया यूनिवर्सल मॉडल। ये किसी के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे सकता था, इसको हम किसी के लिए भी बना सकते हैं। सो ये एक ट्रॉपिक लेवल, ये दूसरे ट्रॉपिक लेवल, ऐसे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे it can be depicted to any type of individual or population। so that is the universal model of ecosystem। now we have some also some formula that is again used in a different numericals और जो भी problems आती हैं। so first is assimilation efficiency। so जो मैंने बताया था कि प्लांट के लिए जो टोटल एनर्जी उनने फिक्स की है वो, और जितनी एब्जॉर्ब की है वो, ठीक है। सो टोटल एनर्जी दैट इज फिक्स बाय द प्लांट, और जितनी टोटल एनर्जी उनने एब्जॉर्ब करी थी, मींस यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है, जो जितना टोटल एनर्जी कैप्चर करा था, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसिमिलेशन इफिशियंसी आएगी। सिमिलरली जो एनर्जी फूड के द्वारा एसिमिलेटेड की गई थी और जो टोटल फूड खाया गया था, उसको हम अपॉन में करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज एसिमिलेशन इफिशियंसी फॉर एनिमल। देन इसके बाद आएगा एक यूटिलाइजेशन और कंजप्शन इफिशियंसी। सो दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी अवेलेबल एट ए ट्रॉपिक लेवल दैट इज एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर सक्सीडिंग
ऑफ ए सक्सीडिंग ट्रॉपिक लेवल। सो मान लो कि एक ट्रॉपिक लेवल n है, इस पे जितनी एनर्जी जो फूड इंजेक्शन हुआ था, जो फूड खाया गया था, ठीक है, और इसका जो एक से पहले वाला जो प्रोडक्शन था ट्रॉपिक लेवल पे, मींस इससे पहले जो ट्रॉपिक लेवल पे प्रोडक्शन था, उससे जो फूड लेके उसने एसिमुलेटेड किया है, इंजेक्ट किया है, ठीक है, वो इनटू 100, इसको इस तरीके से बोला जाता है कि इंजेक्शन एट फूड ट्रॉपिक लेवल n और नेट जो प्रोडक्शन अगले ट्रॉपिक लेवल, इससे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पे अवेलेबल था, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका यूटिलाइजेशन और कंजप्शन इफिशिएंसी। सपोज यहाँ पे 100 ग्राम फूड इनने बनाया एक ट्रॉपिक लेवल पे, और जो नेक्स्ट ट्रॉपिक वाले केवल इसका 90 ग्राम ही यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट फूड ट्रॉपिक लेवल पे अवेलेबल कितना, 100 ग्राम, उसमें से नेट कितना प्रोडक्शन हुआ है ट्रॉपिक लेवल पे जो यूज कर रहे हैं वो 90, तो ये हो जाएगा 90 यूज कर रहे हैं, टोटल कितना बना था, 100 बना था, इनटू डिवाइडेड बाई इनटू 100 टोटल, ये रहेगा इसका यूटिलाइजेशन एंड कंजप्शन इफिशिएंसी। देन ग्रोथ और प्रोडक्शन इफिशिएंसी, दैट इज प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल n एंड एसिमुलेटेड एट ट्रॉपिक लेवल n, ठीक है। तो इसको 100 से हम कर देंगे, मीन्स उन्होंने टोटल कितना प्रोड्यूस किया और कितना एसिमुलेटेड हुआ है, इनटू 100। तो इससे हम ग्रोथ और प्रोडक्शन इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल ग्रोथ इफिशिएंसी, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल n अपॉन इंजेक्शन एट ट्रॉपिक लेवल n, ठीक है, कितना प्रोडक्शन किया और कितना उसने इंजेक्ट किया था, कितना खाया था, है ना, इनटू 100 करेंगे तो इकोलॉजिकल ग्रोथ इफिशिएंसी हमारी निकल के आएगी। प्रोडक्शन कितना किया ट्रॉपिक लेवल n पे और कितना इंजेक्शन किया है ट्रॉपिक लेवल n पे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा इकोलॉजिकल इफिशिएंसी आएगी। देन ट्रांसफर इफिशिएंसी, तो प्रोडक्शन कितना हुआ ट्रॉपिक लेवल n पे और इससे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल n पे n-1 पे कितना प्रोडक्शन था, इन दोनों का रेशियो, दैट इज ट्रांसफर efficiency. So we will also solve some numerical related these questions, तब आपको ये सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। So in another lecture I will discuss the numerical related these problems so that you will know easily understand the formulas. So now we will discuss some previous year questions that is coming regarding, that was asked regarding this energy flow model. सो इन यूजीसी नेट सितंबर 2013 जो है उसमें पूछा गया था, इन बाइसेप एनर्जी मॉडल बर्न आन रिप्रेजेंट हर्बीवोरस एंड द अनदर इज, सो इसका आंसर होगा डिकम्पोजर, जो डेट्रीवोरस है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, सो आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज ए ग्रोथ माइनस रिस्पायरेशन, तो पहला ही इसमें आपको ऑप्शन सही दिख रहा है। देन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, सो इस केस में पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, तो ये हमेशा अपराइट ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर लेवल पे एनर्जी का रेट किससे निकालते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसके थ्रू निकालेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द energy flow in a different ecosystem. In the next video we'll discuss some numerical of this topic and also some other questions that were asked in the UGC net in a previous year. So kindly follow our this app and log into the app. Thanks for the watching.